So hi everyone, welcome to you all in my another video. And today video again one of the successful candidate from academically, the Naveen. Some of you already know. I think that Naveen we have earlier interviews because Naveen was working in Middle East, so he joined us. And this his story is very inspirational to you because he have a lot of hurdles to complete. A lot of things was happened to him, and so he will tell you about this his story. And he passed long back. He's not a recent graduate also. So and he was working here and there, and so he basically managed his time and constantly he was to pursue his dream to come Australia. So finally he passed his CAPS exam. So we'll talk to Naveen. Hi Naveen. Hello, sir. How are you? Uh, how are you? Fine, sir. I'm very happy. Thank you very much. First of all, academically, all of the teachers. First of all, Akram, sir. Harika, ma'am. Arif, sir. I Thank you, can't Naveen. Can you believe please give us myself, your sir. brief introduction about yourself? You are from where and what is your qualification and your experience? I'm Naveen Jaiswal from India. Basically, I'm from MP, Indore. I joined academically in June. I guess I think, sir, I am the first student who joined the academically. So basically, That time, Naveen was in first three students join academically, but the problem was Naveen. He have some problem in his document, the name problem. As you know, like Naveen Jaiswal, WY. In India generally we use even. So just a minor right. the defect in the name. So they rejected Australian Pharmacy Council. They said you have to correct your name. So it takes some time. So in correcting and now he passed the exam. So Sir, I passed Bachelor of Pharmacy in 2013. There is a long gap. yes, I can't believe so that I around will 9 year start gap. again. Yes. That I worked in as a medical representative 5 to 6 years. Then I left. I thought I don't want to work as a medical rep. I moved to Africa. Then further I started there my journey as a pharmacist. Then I came back after married. I again went to Bahrain. I worked there as a pharmacist also 6 months. That time I come to contact with Akram sir. Akram sir guide me how you can move to Australia. Then I So basically, started Naveen, when skill assessment. contacted first time, he was in Bahrain. Okay. So he just went there and working there. So I just guide him, so he can migrate to Australia with his family. So because he was living alone, his wife is in India. So most of the people Yeah, always you ask, in Australia, can we migrate with family? Yes, you can migrate with family and family have a full work right. Wife also can work something in Australia. Even if you have a kids, so kids' education is free. So if they are going for a school, so there is no fees for them. And here, 95% people go to a public school, not private. So it is not it's not a culture like India. India as a government school is not that much good. So people go in private schools, then you have to pay very high fees for your kids. But here everything is free. So I guide him Naveen and he agreed to join. But due to his some problem, he was not able to write the exam in the last year. So he just wrote this is his first attempt and he passed this exam. So Naveen, can you please give us me about your journey because lot of document you need to correct it the names in your document. So lot of yeah, hurdles yeah. for you. I was in Bahrain. I started skill assessment from there, but I received mail from Australian Pharmacy Counseling. Your some of document not matching, so please correct and send back to us. I started from there, but I couldn't possible until I came back to the India. So there is a big challenge in front of me. What? Why? Because I was thinking that if I am in India, I don't want to work as a medical rep. First of all, I moved Africa, Bahrain. Then again, I thought, what what can I do now? It's a big challenge. What family member, what other family can think? You just went before 5 months and you come back again to India. तो So वही yes, challenge था this is सर एक really very challenging. He was in Bahrain, and now he has to decide to come back to India to complete document, or yes, he can stay there because everyone think that in like 4 5 months he's just working with a good salary. Why he's coming back to India? Yes, Naveen.
So who तो motivate एक you that to come and pursue your, I mean, the document and all those things in your family? it it's you, sir, my mom, my wife, you also, and Yes, myself also, sir. Because yes, big challenge ये था कि सर मुझे मेरा गोल देखना था कि मुझे 3 to 4 लाख पर मंथ अर्न करना है ऑस्ट्रेलिया के, या मैं एक सेंटर पॉइंट पे हूँ जहाँ मैं इजिली 1 लाख रुपीज बहरीन में अर्न करना हूँ। हम्म, एक और चैलेंज था कि अगर मैं बहरीन छोड़कर इंडिया जाता हूँ तो मैं फर्दर 25 to 30 थाउजेंड पे आ जाऊंगा। और yes. अगर अगेन मेरे पास चैलेंज वही रहेगा कि मैं जिस चीज का सोचा था कि मैं तो मेडिकल वर्क वही करना चाहता हूँ, वही मुझे आके करना पड़ा। तो इन बिटवीन फैमिली रन करने के लिए मैं अभी भी वही कर रहा हूँ। मैं तो मेडिकल वर्क कर रहा था, इन बिटवीन में टाइम निकाल के स्टडी को देता था। तो बहुत बड़ा चैलेंज था सर वो, मैं किस कहाँ से उठकर कहाँ हूँ और कहाँ जाना है मुझे। यस, तो मैं गोल सेट नवीन, करना था देखो सर। आपकी हमारी तरह एक मीडियोकर फैमिली से हैं, तो उनको अपनी फैमिली भी रन करनी है। तो ये बहरीन से थे, बहरीन से इंडिया बैक आए, फिर से उन्होंने मेडिकल रैप की कंपनी ज्वाइन करी है ना, पूरी फैमिली रन करने के लिए। और उसी के बिजी शेड्यूल, बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है कि एमआर की जॉब का, आप लोगों को पता ही है। कभी नाइट में जा रहे, कभी मॉर्निंग में जा रहे डॉक्टर विजिट करने के लिए। उसमें से उन्होंने टाइम निकाला, डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट किए, स्किल असेसमेंट पूरा किया, और इन्होंने जो है एग्जाम को पास किया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको ये बताऊं कि बहुत टाइम से ये नवीन मेरे से बात करते रहते थे। मेरी बहुत ही बिजी लाइफ है, स्टिल मैंने कभी भी, इन्होंने मुझे मैसेज किया या टेक्स्ट किया या कॉल किया, मैं इनको हमेशा गाइड किया कि ये करो, ये करो, ये करो। और फाइनली इन्होंने एग्जाम पास किया। बेसिकली पूरी जो मेहनत है नवीन की है, और स्पेशली इसकी, इनकी जो वाइफ है, उन्होंने भी इनको बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, आपको अपने लक्ष्य पे रहना है और आपको एग्जाम पास करना है, तभी आप ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे। अदरवाइज ये बीच में शायद ये छोड़ देते, मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी बंदा होगा ना कि मैं कि ऑलरेडी 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, अब मैं छोड़ के इंडिया जाऊंगा, फिर डॉक्यूमेंट कलेक्ट कराऊं, और फिर मैं एग्जाम पास करूंगा, पता नहीं पास कर पाऊंगा या नहीं। बहुत सारे मन में आपके सवाल होते हैं कि जब आपको ये सारी चीजें होती हैं, तो फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और राइट जो है गाइडेंस भी आपको चाहिए। बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो भी आपका ड्रीम है कि एक दिन आप उसको डेफिनेटली उसको अचीव करेंगे, मतलब आपको कॉन्स्टेंटली जो है मेहनत करती रहनी है। राइट सर, ये वर्ड्स इसलिए बोले ताकि आज भी बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज कैप्स देना चाहते हैं, लेकिन वो भी यही सोचते होंगे कि यार कैसे करेंगे, कैसे पैसे मैनेज करेंगे, कैसे क्या होगा। अगर आप जाना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा एकेडमिकली ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी। ये देखो, इज नॉट जस्ट द मनी कि आपको 3 लाख जहाँ महीना मिलेंगे, 2.5 लाख मिलेंगे। आपकी पूरी लाइफ, अभी सोचो कोई एक बंदा छोटी जगह से, एक गांव से बच्चा पास करता है, वो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, उसके गांव के जितने बच्चे होंगे वो इस लाइक रोल मॉडल उनके लिए बन जाएगा, हीरो बन जाएगा एक तरह से वो, कि भाई ये बंदा था हमारे हमारे यहाँ से निकल के ऑस्ट्रेलिया में ये जॉब कर रहा है। और हमको भी बच्चे बहुत मोटिवेट करेंगे, वो खुद से पढ़ेंगे। और आपकी पूरी फैमिली में ना कितनों आप लोग लाइक कितने लोग प्राउड करेंगे आपके ऊपर कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में आते हो। इट्स नॉट जस्ट द मनी कि आप, मनी तो ऑटोमेटिकली आप इंडिया में भी आप कमा सकते हो, है ना, आप कहीं भी जाकर कमा सकते हो। तो बहुत सारी दूसरे लोग आपके लिए आप लाइक आप मोटिवेट करेंगे, आप एकेडमिकली का हमारा एम ही यही है कि जितने भी लोग हैं, आप हमें देख रहे हैं, अगर आपको ड्रीम है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी आपको जाना है, जरूरी नहीं है कि आप एकेडमिकली ज्वाइन करो। आपको अगर खुद से भी, अगर आपको वो है ना, आपको खुद से प्रिपरेशन करनी है, सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आप लोग कर सकते हो। पर बहुत सारे लोग बच्चे पास फेल कर जाते हैं। राइट गाइडेंस चाहिए, और राइट जो मटेरियल है, राइट जो लेक्चरर है वो चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैप्स एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। तो नवीन ये बताइए राइट कि सर। आपका कितने परसेंटेज, मतलब आपने कितने आवर पढ़ते थे, और आपने क्या क्या करते थे, आप कैसे टाइम को मैनेज करते थे अपनी पूरी फुल टाइम जॉब के साथ में? जो जॉब में कर रहा था सर उसमें फुल डे वर्किंग भी रहता था, ट्रेवलिंग ज़्यादा रहता है, इंटीरियर कवर करना पड़ते हैं जैसे मेडिकल वेब जॉब कर रहे हैं। इन बिटवीन में 6 o'clock उठ जाता था, 6-6:30, और 10-1 बजे तक मैं पढ़ लेता था, 3-3.5 घंटे में दे देता था। उसके बाद फुल डे में जॉब करके फिर कभी इवन नाइट में मैं घर पे आके अगर एक आध घंटा निकाल पाता तो फिर मैं स्टार्ट कर देता था स्टडी। तो कुल मिला के 4-5 घंटे अगर आप देंगे तो इनफ है। और जो भी आप मॉक दे रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, लेक्चर रिकॉर्डिंग आप बार बार देखिए। यही सजेशन है, एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको लेक्चर सुनना है, देखना है। अगर और आपने मॉक 3 से कंटिन्यू। 5 बार लेक्चर को देख लिया ना, तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो आपके माइंड में खुद ही बैठ जाएगा। आरिफ सर राइट। और माई सेल्फ, हम दोनों लेक्चर थे ऐसे, इन मलेशिया। तो मैं बेस्ट लेक्चरर का मुझे अवार्ड मिला था एज ए रिसर्चर।
आरिफ सर को मिला था बेस्ट टीचर का अवार्ड। तो वो एक बहुत ही ऐसा टीचर है कि वो जो पढ़ाता है इजीली आपको ग्रास्प होगा, बहुत ही इजीली वे में समझाते हैं आरिफ सर के, वो इजीली आपको जो है समझ में आ जाएगा। और आप 3 बार अगर आपने वीडियो को देख लिया, नवीन 5 बार बोल रहा है, मैं श्योर करता हूँ 3 बार अगर आपने देख लिया तो आपको बाद में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वो खुद ही फिट हो जाएगा। राइट सर। तो कंटिन्यूअसली मॉक्स देते रहिए, अगर ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है लेकिन स्टिल आप देते रहिए, बार बार मॉक्स देते रहिए। टोटल 11 और 12 मॉक्स थे टोटल, यस। उनको देते दीजिए। और मेन थिंग ये है कि बच्चे क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट करके आते हैं, इतना इजी लगता है लेकिन वो होते नहीं है। हम्म। तो उनको बार बार क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम उनको पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शन क्या दे रहे हैं उनको भी ध्यान से देखना है, उसको कनेक्ट करना है एक दूसरे से, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। अच्छा, ये जो हमारे मॉक थे नवीन, उसमें से कितने परसेंट अराउंड एग्जाम में आया होगा आपके वाले एग्जाम में, एनी आइडिया? पेपर फर्स्ट में मैं बोलूँ तो 80 to 90% ओके। एग्जैक्ट वही मॉक्स थे। ओके। तो आई कांट बिलीव दैट ये सेम कैसे आ गए। बस थोड़ा बहुत ट्विस्ट रहता है सर, जैसा मैंने बोला। तो हाँ। पेपर 2 में अगर बोलूँगा तो सर कॉन्सेप्ट बेस्ड था, वहां पर मुझे मॉक के अलावा मैं, वही बात है कि सर लेक्चर को इग्नोर नहीं करना, लेक्चर यस। बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे मॉक के अलावा भी। तो वहाँ पे ट्विस्टिंग बहुत होती है पेपर 2 में, और स्पेशली कैलकुलेशन पार्ट भी टफ होता है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो अगर एकेडमिक आप ले लिए लेक्चर यही प्रॉपर। एक मेन ये है कि आपने जो ना लेक्चर अटेंड किए तो कहीं से भी पूछ दे एग्जाम, आप पास करने के भर 50% आप ले आओगे। तो मॉक पे 100% डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, वो हम भी बोलते हैं, इसीलिए हम लोग मॉक को सेकेंडरी हम बोलते हैं। पहले हम बोलते हैं लेक्चर पे फोकस करो, क्योंकि लेक्चर ही है वो, कहीं से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेगा तो आपके दिमाग में रहेगा, जो आपने पढ़ा था आप खुद से आंसर करोगे, उसका आंसर आपका ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि ये पढ़ाया गया था। राइट सर। अगर रट के करेंगे वो, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ प्रोजेटिन, उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज नॉट अ साइड इफेक्ट। तो ये हम्म। इसका बहुत छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता जी जी जी। तो नवीन, आप लास्ट में क्या बोलना चाहोगे जो लोग हम लोग को देख रहे हैं, उनके मोटिवेशन की स्पेशली? नवीन एक ऐसे हैं कि देखो, एक एमआर की जो जर्नी होती है बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ होती है, कि आपको जैसे आपको बेसिकली आप किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो, उसके अगर 6 टाउन है, 8 टाउन है, गांव है, आपको सब जगह विजिट करनी पड़ती है। सुबह को आप जाओगे, रात को 9 बजे आते हो, कभी 10 बजे आते हो, है ना? पता नहीं है आपको आप किस टाइम आओ, कभी कभी जल्दी भी आ सकते हो, कभी कभी आप शहर में रहोगे तो शायद आपको यार टाइम मिल जाए, पर मोस्ट लाइकली ये बहुत ही हेक्टिक होती है, आपको जल्दी ट्रैवल करनी पड़ती है बस में, या आप अपनी मोटरसाइकिल से जाते हो ना। उसके बीच में नवीन ने जो टाइम निकाल कर मॉर्निंग में उठते थे 6 बजे, 6 से 10 पढ़ लिया और 6 से 9 पढ़ लिया, अपना पढ़ लिया, फिर अपना उन्होंने अपना बैग वैग संभाला, सैंपल वैम्पल रखे ये सब बहुत ही जर्नी होती है हमारी की, और फिर ये निकल पड़े अपनी जो है डॉक्टर से मिलने के लिए, है ना? तो ये थी इनकी जर्नी। यस नवीन, लास्ट में क्या बोलना चाहोगे आप जो हम लोग को दे, स्पेशली जो एमआर हैं, जो बहुत ज्यादा, बहुत इंडिया में बहुत ज्यादा एमआर हैं, जो फार्मेसी के बाद जो लोग एमआर बनते हैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कि बोलते हैं यार कि हमने क्या कर लिया, फार्मेसी की डिग्री हमने क्यों किया था। है। राइट सर, एक बैक प्रेशर होता है हर मंथ, वही टारगेट का इशू, यस। मैंने उसको क्या जवाब देना है, हर चीज रहती है। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ गोल है आपका लाइफ में, जरूरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी जा सकते हैं आप, कनाडा। जी। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप एकेडमी ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी एकेडमिकली। एक कोचिंग नहीं होके एक फैमिली है। ये मैंने अकरम सर ने हमेशा हेल्प की है, और आरिफ सर, हारिका मैम, ये एक फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। इवन आप लेक्चर के बाद भी कभी कोई डाउट हो उन्हें मैसेज करें, उनको कॉल करें, आपको 100% रिस्पॉन्स देंगे वो। तो एक मैं आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप जाना, बाहर जाने का आपका मन है, विचार है, तो आप एकेडमी के लिए ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी जर्नी। Okay, no, thank you so much, Naveen. And I will looking forward to see you in Australia very soon. So Naveen has to pass now to for that English test PT. Then he has to file his visa. So today the result came. So he just I've just said the conversation. And thank you, Naveen. थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. थैंक यू Bye. एकेडमी।